کہ کچھ نہیں کر سکتی اور کچھ نہیں کرے گی وہ. یہ عام تھانہ یا پولیس نہیں ہے شایان. آپ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح دیکھا, اور میں نے کام باہر سے کروایا, لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کام یہاں سے کیا ہو. لیکن کچھ نہیں امی, ٹریس ہی نہیں ہو سکتا. کیا وہاں تھوڑا سا تو ویٹ کر سکتے ہیں. تم ابھی تک باہر نہیں آئی. میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ میں کلاس میں ہوں. ہمارا مجرم پکڑا جائے گا. جب غلطی موجود رہے نا تو سوری کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اس دنیا میں ہی پکڑا جائے گا. اب یہ مت کہنا آخرت میں. لیکن ایسے جذباتیت سے مجھے اسی دنیا میں ہی چاہیے. انس ہم کہیں اور نہیں رہ سکتے کیا؟ مطلب وہاں ہی جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ ہمارا گھر ہے. یہ مت بولنا کہ دادا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ہم ان کو ساتھ لے کر جائیں گے. اس عمر میں لوگ اپنا گھر نہیں بدلا کرتے. دادا نہیں جائیں گے. اچھا تائے جان نہیں جانے دیں گے. تو ہم چلتے ہیں. اب اٹھاؤں گا ہی نہیں میں تمہیں. 5 منٹ اور. جو ساری رات میں نیند پوری نہیں ہوئی وہ 5 منٹ میں بھی نہیں ہوگی. تم نے جانا ہی نہیں یونیورسٹی. جلدی کر لو پلیز, لیٹ ہو گئے. کیا ہوا؟ ہائے اللہ, میں کیا پہنوں؟ وہی کپڑا استری نہیں ہوا ہے. ہاں بتاؤ. آسمان سے آنے والا خط. ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارسلان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا. وہ ہر رات چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھا کرتا تھا. ایک رات تیز ہوا چلی اور آسمان سے ایک سفید کاغذ اس کے صحن میں آ گرا. کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا, جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہارے اپنے گاؤں میں موجود ہے. ارسلان حیران ہوا. اگلی صبح وہ گاؤں میں گھومنے نکلا. سب سے پہلے اسے ایک پرانا اسکول نظر آیا جس کی حالت بہت خراب تھی. وہاں صرف چند بچے پڑھتے تھے. ارسلان نے سوچا شاید یہی راز ہے. اس نے گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کیا اور اسکول کی صفائی شروع کر دی. پھر دوسرے بچے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. کچھ دن بعد بڑوں نے بھی مدد کرنا شروع کر دی. کسی نے کتابیں دیں, کسی نے میزیں, کسی نے اسکول کی مرمت کے لیے سامان فراہم کیا. چند ماہ بعد وہی پرانا اسکول پورے گاؤں کا سب سے خوبصورت مقام بن گیا. ایک رات ارسلان کو دوبارہ آسمان سے ایک خط ملا. اس میں لکھا تھا, تم جس خزانے کو تلاش کر رہے تھے وہ علم تھا, اور تم نے اسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے روشن کیا. ارسلان نے خط سنبھال کر رکھ لیا. سالوں بعد اسی اسکول سے پڑھنے والے کئی بچے ڈاکٹر, استاد, انجینئر اور مختلف شعبوں کے ماہر بن گئے. تب ارسلان کو سمجھ آیا کہ ایک چھوٹا سا قدم کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. سبق, علم کی روشنی صرف ایک انسان کو نہیں پوری نسل کو روشن کر سکتی ہے. ستارہ. آسمان سے آنے والا خط. ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارسلان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا. وہ ہر رات چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھا کرتا تھا. ایک رات تیز ہوا چلی اور آسمان سے ایک سفید کاغذ اس کے صحن میں آ گرا. کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا, جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہارے اپنے گاؤں میں موجود ہے. ارسلان حیران ہوا. اگلی صبح وہ گاؤں میں گھومنے نکلا. سب سے پہلے اسے ایک پرانا اسکول نظر آیا جس کی حالت بہت خراب تھی. وہاں صرف چند بچے پڑھتے تھے. ارسلان نے سوچا شاید یہی راز ہے. اس نے گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کیا اور اسکول کی صفائی شروع کر دی. پھر دوسرے بچے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. کچھ دن بعد بڑوں نے بھی مدد کرنا شروع کر دی. کسی نے کتابیں دیں, کسی نے میزیں, کسی نے اسکول کی مرمت کے لیے سامان فراہم کیا. چند ماہ بعد وہی پرانا اسکول پورے گاؤں کا سب سے خوبصورت مقام بن گیا. ایک رات ارسلان کو دوبارہ آسمان سے ایک خط ملا. اس میں لکھا تھا, تم جس خزانے کو تلاش کر رہے تھے وہ علم تھا, اور تم نے اسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے روشن کیا. ارسلان نے خط سنبھال کر رکھ لیا. سالوں بعد اسی اسکول سے پڑھنے والے کئی بچے ڈاکٹر, استاد, انجینئر اور مختلف شعبوں کے ماہر بن گئے. تب ارسلان کو سمجھ آیا کہ ایک چھوٹا سا قدم کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. سبق, علم کی روشنی صرف ایک انسان کو نہیں پوری نسل کو روشن کر سکتی ہے. ستارہ. آسمان سے آنے والا خط. ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارسلان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا. وہ ہر رات چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھا کرتا تھا. ایک رات تیز ہوا چلی اور آسمان سے ایک سفید کاغذ اس کے صحن میں آ گرا. کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا, جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہارے اپنے گاؤں میں موجود ہے. ارسلان حیران ہوا. اگلی صبح وہ گاؤں میں گھومنے نکلا. سب سے پہلے اسے ایک پرانا اسکول نظر آیا جس کی حالت بہت خراب تھی. وہاں صرف چند بچے پڑھتے تھے.
अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नजर आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नजर आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नजर आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था,
और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने ख़त संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला ख़त। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक ख़त मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने ख़त संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला ख़त। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक ख़त मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने ख़त संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला ख़त। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक ख़त मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने ख़त संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला ख़त। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था।
वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है।
اس نے گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کیا اور اسکول کی صفائی شروع کر دی۔ پھر دوسرے بچے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ دن بعد بڑوں نے بھی مدد کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کتابیں دیں، کسی نے میزیں، کسی نے اسکول کی مرمت کے لیے سامان فراہم کیا۔ چند ماہ بعد وہی پرانا اسکول پورے گاؤں کا سب سے خوبصورت مقام بن گیا۔ ایک رات ارسلان کو دوبارہ آسمان سے ایک خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، تم جس خزانے کو تلاش کر رہے تھے وہ علم تھا، اور تم نے اسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے روشن کیا۔ ارسلان نے خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سالوں بعد اسی اسکول سے پڑھنے والے کئی بچے ڈاکٹر، استاد، انجینئر اور مختلف شعبوں کے ماہر بن گئے۔ تب ارسلان کو سمجھ آیا کہ ایک چھوٹا سا قدم کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ سبق: علم کی روشنی صرف ایک انسان کو نہیں پوری نسل کو روشن کر سکتی ہے۔ ستارہ ستارہ آسمان سے آنے والا خط۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارسلان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہر رات چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک رات تیز ہوا چلی اور آسمان سے ایک سفید کاغذ اس کے صحن میں آ گرا۔ کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہارے اپنے گاؤں میں موجود ہے۔ ارسلان حیران ہوا۔ اگلی صبح وہ گاؤں میں گھومنے نکلا۔ سب سے پہلے اسے ایک پرانا اسکول نظر آیا جس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہاں صرف چند بچے پڑھتے تھے۔ ارسلان نے سوچا شاید یہی راز ہے۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کیا اور اسکول کی صفائی شروع کر دی۔ پھر دوسرے بچے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ دن بعد بڑوں نے بھی مدد کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کتابیں دیں، کسی نے میزیں، کسی نے اسکول کی مرمت کے لیے سامان فراہم کیا۔ چند ماہ بعد وہی پرانا اسکول پورے گاؤں کا سب سے خوبصورت مقام بن گیا۔ ایک رات ارسلان کو دوبارہ آسمان سے ایک خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، تم جس خزانے کو تلاش کر رہے تھے وہ علم تھا، اور تم نے اسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے روشن کیا۔ ارسلان نے خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سالوں بعد اسی اسکول سے پڑھنے والے کئی بچے ڈاکٹر، استاد، انجینئر اور مختلف شعبوں کے ماہر بن گئے۔ تب ارسلان کو سمجھ آیا کہ ایک چھوٹا سا قدم کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ سبق: علم کی روشنی صرف ایک انسان کو نہیں پوری نسل کو روشن کر سکتی ہے۔ ستارہ ستارہ آسمان سے آنے والا خط۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارسلان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہر رات چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک رات تیز ہوا چلی اور آسمان سے ایک سفید کاغذ اس کے صحن میں آ گرا۔ کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہارے اپنے گاؤں میں موجود ہے۔ ارسلان حیران ہوا۔ اگلی صبح وہ گاؤں میں گھومنے نکلا۔ سب سے پہلے اسے ایک پرانا اسکول نظر آیا جس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہاں صرف چند بچے پڑھتے تھے۔ ارسلان نے سوچا شاید یہی راز ہے۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کیا اور اسکول کی صفائی شروع کر دی۔ پھر دوسرے بچے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ دن بعد بڑوں نے بھی مدد کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کتابیں دیں، کسی نے میزیں، کسی نے اسکول کی مرمت کے لیے سامان فراہم کیا۔ چند ماہ بعد وہی پرانا اسکول پورے گاؤں کا سب سے خوبصورت مقام بن گیا۔ ایک رات ارسلان کو دوبارہ آسمان سے ایک خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، تم جس خزانے کو تلاش کر رہے تھے وہ علم تھا، اور تم نے اسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے روشن کیا۔ ارسلان نے خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سالوں بعد اسی اسکول سے پڑھنے والے کئی بچے ڈاکٹر، استاد، انجینئر اور مختلف شعبوں کے ماہر بن گئے۔ تب ارسلان کو سمجھ آیا کہ ایک چھوٹا سا قدم کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ سبق: علم کی روشنی صرف ایک انسان کو نہیں پوری نسل کو روشن کر سکتی ہے۔ ستارہ ستارہ آسمان سے آنے والا خط۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارسلان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہر رات چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک رات تیز ہوا چلی اور آسمان سے ایک سفید کاغذ اس کے صحن میں آ گرا۔ کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہارے اپنے گاؤں میں موجود ہے۔ ارسلان حیران ہوا۔ اگلی صبح وہ گاؤں میں گھومنے نکلا۔ سب سے پہلے اسے ایک پرانا اسکول نظر آیا جس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہاں صرف چند بچے پڑھتے تھے۔ ارسلان نے سوچا شاید یہی راز ہے۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کیا اور اسکول کی صفائی شروع کر دی۔ پھر دوسرے بچے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ دن بعد بڑوں نے بھی مدد کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کتابیں دیں، کسی نے میزیں، کسی نے اسکول کی مرمت کے لیے سامان فراہم کیا۔ چند ماہ بعد وہی پرانا اسکول پورے گاؤں کا سب سے خوبصورت مقام بن گیا۔ ایک رات ارسلان کو دوبارہ آسمان سے ایک خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، تم جس خزانے کو تلاش کر رہے تھے وہ علم تھا، اور تم نے اسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے روشن کیا۔
अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था।
एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक ख़त मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने ख़त संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला ख़त। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक ख़त मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने ख़त संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला ख़त। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक ख़त मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने ख़त संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला ख़त। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए।
कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा, शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला। सबसे पहले उसे एक पुराना स्कूल नज़र आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ सिर्फ चंद बच्चे पढ़ते थे। अरसलान ने सोचा, शायद यही राज है। इसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल की सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरे बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ दिन बाद बड़ों ने भी मदद करना शुरू कर दी। किसी ने किताबें दी, किसी ने मेज़ें, किसी ने स्कूल की मरम्मत के लिए सामान फराहम किया। चंद माह बाद वही पुराना स्कूल पूरे गांव का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। एक रात अरसलान को दोबारा आसमान से एक खत मिला। इसमें लिखा था, तुम जिस खजाने को तलाश कर रहे थे वो इल्म था, और तुमने उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशन किया। अरसलान ने खत संभाल कर रख लिया। सालों बाद उसी स्कूल से पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबों के माहिर बन गए। तब अरसलान को समझ आया कि एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। सबक, इल्म की रोशनी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान से आने वाला खत। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रात छत पर बैठकर सितारों को देखा करता था। एक रात तेज हवा चली और आसमान से एक सफ़ेद कागज़ इसके सहन में आ गिरा। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अपने गांव में मौजूद है। अरसलान हैरान हुआ। अगली सुबह वो गांव में घूमने निकला।